اگر چین کی تلاش ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہم سب راضی کرنے کا عہد کریں اور گناہوں کے چھوڑنے کا عہد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ چین تم کو ہماری یاد سے ملے گا، مگر یاد کی دو قسمیں ہیں، جن باتوں سے خوش ہوتے ہیں اس کو بجا لانا، اللہ تعالیٰ جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دینا۔ ورنہ خوب یاد کر لو دوستو، وہ ہر سانس اگر ہم چاہیں کہ ہماری اطمینان و چین کی ہو تو اللہ تعالیٰ پر مرنا، ان کو خوش رکھنا سیکھ لو، اور ایسا ایمان و یقین اللہ والوں کی صحبت سے حاصل کر لیجئے کہ جان دے دیجئے مگر مالک کو ناراض نہ کیجئے۔ نفس کی حرام لذتوں کی خاطر جو اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اور مٹی کے مردہ لاشوں پر مر جائے، ایسے ظالم کو کیا چین ملے گا؟ اور یہ ظالم کس قدر غیر شریف، بے غیرت، بے حیا، کمینہ، بدخصلت ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنے محسن کو ناراض کرنے کے لیے اللہ کی ناخوشی کی راہوں سے حرام خوشیوں کو درآمد کر رہا ہے۔ آہ نکل جاتی ہے دوستو، سوچو اس کو کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ذرا بھی ہو، وہ نافرمانی کو دیکھ کر دوسروں کی نافرمانی سے بھی غمگین ہو جاتا، خاص کر اپنا شاگرد اور اپنا مرید سفر کر رہا ہو اور ساتھ میں کسی عورت کو دیکھ رہا ہے یا کسی امرت کو دیکھ رہا ہے، شیخ پر کیا گزرے گی؟ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک اللہ والے کہیں جا رہے تھے، دیکھا کہ کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، کوئی شخص کوئی گندا کام کر رہا ہے، حرام لذت اڑا رہا ہے، فوراً لوٹ آئے۔ اتنا کمزوری، دل میں پریشانی آئی کہ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے اور رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ میں کتنا نالائق ہوں کہ آج میں نے آپ کی نافرمانی دیکھ لی۔ اور اس غم نے اتنا گھولے کہ شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جب پیشاب کیا تو پیشاب میں خون آ گیا۔ اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرے کہ ہم خود گناہ کر کے بھی ہمارے پیشاب میں خون کیا، ہمارے دل کو بھی غم نہیں ہوتا، وہی چائے نوشی، وہی انڈے آملیٹ اڑ رہے ہیں۔ کہتا ہو اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرما، اختر پر، اس کی اولاد پر، اس کے دوستوں پر، ہمیں اپنی جان پر رحم کرنے کی توفیق۔ اور اگر یہ دعا آپ لوگ کر لیا کریں، اللہم ارحمنی پڑھیے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ ہم پر وہ رحمت نازل کر دے کہ جس سے ہم گناہوں کو چھوڑ دیں۔ بتاؤ یہ رحمت ہے یا پکوڑے اور سموسے، کینیا کی چائے اور آملیٹ ہر وقت لذتوں کی خاطر؟ اصل رحمت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی گناہوں سے بچتا ہو وہ سائے رحمت میں، اور جو گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے بار بار سائے لعنت میں۔ لہذا بتاؤ بھائی، ہم کو آپ کو چین سے رہنے کی خواہش ہے؟ اگر ہمیں چین چاہیے تو ہمارا کوئی لمحہ، ہماری کوئی سانس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ گزرے، دل میں بھی گندے خیالات نہ لائیے، تمنا بھی نہ کیجیے کاش یہ عورت ہم کو جو سڑک پر جا رہی ہے یہ ہم کو مل جاتی۔ گناہ کا تمنا کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، ہم تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو جان رہے ہیں، جو تم آنکھوں کو نہایت بے غیرتی کے ساتھ ادھر ادھر ڈالتے ہو۔ میری نظر تمہاری نظر پر ہے، اور ظالم تو کہاں نظر ڈال رہا ہے؟ آپ بتاؤ، اللہ تعالیٰ تو نظر رحمت سے ہم کو دیکھیں اور ہم کہیں اور دیکھیں۔ ہے افسوس کی بات، یعنی آسمان والا تو زمین والے پر نظر رکھتا ہے اور زمین والا کدھر دیکھ رہا ہے۔ میرا ایک اردو شعر یاد آیا جو سناتا رہتا ہوں، میری نظر پہ ان کی نظر پاسباں رہی، میری نظر پہ ان کی نظر پاسباں رہی، افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم۔ جب نظر استعمال کرو تو سوچو میری نظر پر ان کی نظر مسلسل ہے، وہ لمحے کو اللہ تعالیٰ کی نظر ہم سے نہیں ہٹتی، پھر اس کے باوجود ہم ان کی نافرمانی کو کے راہوں سے حرام خوشیاں درآمد کرتے ہیں، تو کیا ہم خوش رہ سکیں گے؟ جس دل کو اللہ نے اپنے لیے بنایا، کہ دل ہم نے دیا ہے ہمارے ہی اوپر فدا کرنا، لیکن اگر ہم ان حسینوں کو دل دیں گے تو دل کمزور بھی ہو جائے گا، غیر محل میں استعمال ہوا، کیونکہ دل کی غذا یاد محبوب ہے، اور محبوب سے مراد کامل محبوب ہے جو کسی وقت ہم سے جدا نہ ہو۔ وہ محبوب ناقص ہے کہ جو ہم سے کسی وقت جدا بھی ہو جائے، تو جب جدا ہوگا تو جدائی کا غم آئے گا، غم سے دل کمزور ہوگا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک ایسا محبوب ہے جو ایک لمحے کو ہم سے جدا نہیں ہوتا، ہم اس سے جدا ہوتے ہیں نالائقی سے، غفلت سے۔ اگر ہم آپ چاہے ہر وقت دھیان رکھیں کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ جملہ اسمیہ ہے کہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں،
حضرت مولانا صاحب محمد احمد صاحب रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं उनके सिवा किस पे फिदा हूँ ये बता दो, मैं उनके सिवा किस पे फिदा हूँ ये बता दो, ला मुझको दिखाओ उनकी तरह कोई अगर। अरे लात परस्तो, लात खाने वालों, मना लातो मना से कितने लानतें हो खाओगे। आज देखो दिल की बीमारियों, सारी आजाब जितने दुनिया में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये तुम्हारे हाथों की वजह से तुमने जो करतूत किए। हर गम का इलाज, इसीलिए हर गम का इलाज इस्तिग़फ़ार और तौबा है। जल्दी जल्दी अगर हम इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह को राजी कर लें तो आज भी अल्लाह हमारे उससे गम हटा देगा। हमारा मुआशरा, हमारा शहर, हमारा मुल्क अमन आफियत का बन सकता है, बशर्ते कि हम अल्लाह ताला की नाराजगी और नाफरमानी छोड़ दें। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार, जो कसरत से इस्तिग़फ़ार कर ले, माफी मांगकर अपने अल्लाह को राजी कर ले और गुनाहों को छोड़ दे, तो अल्लाह ताला जाल अल्लाहु लहू मिन कुल्लि ज़ैक़िन मखरजा, हर परेशानी को अल्लाह दूर कर दे, हर मुसीबत से अल्लाह एग्जिट और आपको मखरज खुरूज देगा। व मिन कुल्लि हम्मिन फरजा, हर गम से अल्लाह नजात देगा। व रज़क़हुल्लाहु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ऐसी जगह से रोजी देगा जहां से उसका गुमान भी नहीं हो। एक दुआ सिखाता हूँ, जो किसी वजीफे से गम न जा रहा हो, गुनाह से तौबा कर ले, मगर शर्त यही है, क्योंकि खमीरा खाओ मोती का जहर भी खाए, खमीरा काम देगा? वो तो बोलो भाई, मोती का खमीरा खाओ, 100 रुपये की एक खुराक, एक आधा चमचा, इतना कीमती असली मोती, मगर हेरोइन भी खाता है, जहर भी खाता है, जुड़िया बाजार से संख्या भी खाता। तो अल्लाह ताला की नाफरमानी छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी विलायत और सबसे बड़े अमल यही है। और ये भी बताइए कि गुनाह छोड़ने में क्यों हम लोग देर करते हैं? बताओ भाई, सब बताओ, गुनाह अच्छी चीज है या खराब चीज? तो ये बताइए कि खराब चीज को जल्दी छोड़ना चाहिए या देर से? बस सोच लो, अपने ही मुंह से इकरार कर रहे हो। भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, हम सब मिल करके अहद कर ले। अख्तर भी आपके साथ शामिल है कि हम सब मिल के अहद कर ले कि अल्लाह, हम जान देंगे मगर आपको नाराज नहीं करेंगे। हराम लज्जतों की इंपोर्टिंग, इस्तिराद और दरामदात पर खील कर देंगे। आंखों को हम कहेंगे हम तुमको उखाड़ के फेंक देंगे अगर तुमने अल्लाह की नाफरमानी की जगह नजर डाली। आंखों से कहो, अगर तूने नमकीन चेहरों पर नजर डाला तो आंख तो उसको निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। मगर इसके आप माने नहीं कि आप चाकू लेकर चले रास्ते में और अपनी आंख को फोड़ दें। ये एक जोश दिलाने का उन्वान मारूमी ने बयान किया है कि जो आंख आपकी फरमाबरदार नहीं है वो चेहरे पर फिटिंग के काबिल नहीं है। जो गर्दन आप पर न कटे वो कसाईयों के काबिल है। जो हाथ आपकी राह में नहीं इस्तेमाल हो रहा है वो हाथ इस काबिल है तो उसको फेंक दिया जाए। इसके माने थोड़ी खुदकुशी कर लो। बात चीजें दोष दिलाने के लिए होती हैं। देखो, अब्बा कहते हैं, देखो अगर तुम फिर सिनेमा गए तो कान तोड़ दूंगा। आप बताओ, आज तक किसी के बाप ने कान तोड़ा? लेकिन समझाने के लिए कुछ उन्वान होता है, इसलिए मारूमी ने समझाने का उन्वान किया कि वो आंखें इस काबिल नहीं है कि हमारे चेहरे पर फिट रहे, जो अल्लाह ताला की नाराजगी के मौके पर हराम लज्जतों को इस्तिराक कर रही हैं। इरादा कर लो, अल्लाह ने हिम्मत दी है। वल्लाह मस्जिद में कसम खाकर अख्तर कहता है कि खुदा ने हम सबको गुनाह छोड़ने की हिम्मत ताकत दी, वरना तकवा फर्ज ना होता। लेकिन हम इनमें ही इरादे को और हिम्मत को इस्तेमाल न करने के सब हम मुजरिम हैं, वरना अल्लाह ताला की अजमत का हक कौन अदा कर सकता। शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह मेरे मुर्शिद ने फरमाया, जब ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से इतना डरो जितना उसका डरने का हक है, तो सहाबा में रोते रोते आवाज बुलंद हुई कि सारे मदीने पाक में कोहराम मच गया। हजरत ने फरमाया, फौरन अल्लाह को रहमत जोश में आई और दूसरी आयत नाजिल कर दी, फत्तकुल्लाह, इतना डरो, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितनी तुम्हारी ताकत हो। क्या मतलब कि तुम मेरी अजमत का हक कैसे अदा कर सकते? मेरा हक नहीं अदा कर सकते, मेरे डरने का हक तुमसे अदा नहीं हो सकता। लिहाजा आप तुम रो मत, शोरगुल इतना ना रो कि बीमार पड़ जाओ। इतना करो कि जितनी तुम्हारी ताकत है उतना इस्तेमाल करो, हिम्मत इस्तेमाल करो। अब बताओ, हम लोग अल्लाह की नाफरमानी छोड़ने की हिम्मत जितनी अल्लाह ने दी है, जितनी अल्लाह ताला ने ताकत दी है, सच सच बताओ, क्या हम लोगों ने वो ताकत इस्तेमाल की? मस्ततातुम पर हम लोग मुजरिम है या नहीं? इस्तिताअत, जितनी ताकत दी है अल्लाह ने, क्या हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं? आप बताओ, इस जमाने में
इस जमाने में मौत के असबाब कैसे कितने ज्यादा है या नहीं बताओ। लेकिन आज भी बहुत से लोगों ने अभी गालों पर अल्लाह ताला के हुक्म को नाफिज नहीं किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी शरीफ का हदीस कि दाढ़ियों को बढ़ाओ, मोछों को कटाओ। वाफुल लोहा, ये आपके हमारे नबी का फरमान आलिशान है। जो उम्मत अपने नबी के फरमान पर अस्तूरा चलाए, बताओ क्या हाल होगा उसका। हुजूर फरमाए कि वाफुल लोहा, दाढ़ियों को बढ़ाओ, और हम उनके कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, हम दाढ़ियों पर अस्तूरा चला रहे। ये बताओ गाल तुम्हारे हैं या अल्लाह के। अगर ऐसी हालत में कोई गोली आ गई तो क्या होगा। हदीस में है कि जिस हालत में मौत आएगी उसी हालत में उठाया जाएगा। आजकल कसरत से देखो दोस्तों, जल्दी जल्दी कोशिश करो। इस जमाने में हमारे दिल दहशत ज़दा, खौफ ज़दा है। दिल नरम हो गया है, जमीन नरम है, जल्दी जल्दी बिजाई कर लो। जब बारिश होती है तो किसान आपस में कहते हैं अपने बेटों को, बेटा बारिश हो गई है, जमीन नरम हो गई, चलो कल जल्दी से बिजाई कर दें। बिजाई माने बीज डाल दें। आजकल अल्लाह ताला ने ऐसे हमारे लिए ऐसा माहौल बना हुआ है कि हर शख्स सुबह से जब निकलता है तो उसे यकीन नहीं होता कि शाम को हम अपने घर खैरियत से आएंगे या नहीं। ये दिल गोया नरम कर दिया। दिल की साख्त और दिल का खेत बिल्कुल इस काबिल है कि आप गालों पर अपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आलीशान के बिजाई कर दें। आप बिजाई बो दो जल्दी से, बड़ी जल्दी उग जाएगा। वरना सोच लो कि अगर खुदा न खास्ता हालात कैसे है, बुलावा आ गया, न जाने बोला ले पिया की घड़ी, तो रह जाए तख्ती खड़ी की खड़ी। तो हदीस में आता है इसी हालत में फिर उठाया जाएगा, यानी दाढ़ी मुंडा हुआ क़यामत के दिन उठाया जाएगा। ये हदीस शरीफ का मज़मून है। अब अगर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आपने कहा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह साहब मेरी शफात, आप फरमाएंगे पहले अपने चेहरे का हिसाब दो कि ये तुमने मेरा चेहरा तुमको क्यों नागवार नापसंदीदा था, कि मेरा जैसा चेहरा तुमने नहीं बनाया। मेरे चेहरे का पहले ऐब बताओ, ऐब पेश करो। तुमने रसूल के चेहरे पर क्या ऐब पाया कि तुमने ऐसा चेहरा तुमने ऐसा नहीं बनाया। और सिखों ने बना लिया अपने गुरु नानक सिख काफिर होकर काफिर पेशवा पर की दाढ़ी बना ली, और तुम मोमिन होकर अपने पैगंबर और नबी भी सारे नबियों का सरदार और उसके चेहरे मुबारक की तुमने तशबीह इख्तियार नहीं की और तकलीफ अलग उठाई। गालों को सारी जिंदगी छीरते रहे थोड़े से, एक कोट दो कोट, और फिर उसके बाद से खूंटी उखाड़ कोट करते रहे। और वही एक शख्स मुझे इलाहाबाद में मिला और खानदानी था मेरा, जिसने मेरे कहने से दाढ़ी नहीं रखी। अचानक देखा तो पूरी दाढ़ी। मैंने कहा क्या बात है भाई। कहने लगे कैंसर हो गया है गाल में, तो सुराख आर पार है, उस सुराख को छुपाने के लिए दाढ़ी रख ली है। देखा आपने, दाढ़ी न रखने का अजाब नाजिल हुआ, उस वक्त भी जालिम को तौफीक न हुई कि अल्लाह के लिए रखता। कहता है सुराख छुपा हुआ है इन बालों से, कैंसर का सुराख। दोस्तों मैं अर्ज करता हूँ, दर्द दिल से कहता हूँ, और मैं कसम खाकर कहता हूँ कि किसी मोमिन को जितने सामीन हैं, आप सबको अख्तर अपने से बेहतर समझकर पेश कर रहा है, बदरजहा बेहतर समझता है। किसी मुसलमान को हकीर समझना मैं हराम समझता। लेकिन क्या बताऊं, दिल का दर्द नहीं मानता कि अपने दोस्तों को चाहता हूं कि हम्मा अख्तर भी और आप सब सर से पैर तक अल्लाह ताला की मर्जी पर फिदा हो जाएं, और सिर्फ जिस्म फिदा न करें, दिल भी फिदा कर दें। बुरी बुरी ख्वाहिशात से भी कल्ब को बचाएं, आंखों को भी अल्लाह की नाफरमानी से बचाएं, और कानों को गाना सुनने से बचाएं। आंख को नाफरमानी, नालायक, नामुनासिब जगह ना देखें आंख से, औरत और मर्दों को ना देखें। जबान से गीबत न करें, जबान से झूठ न बोलें, और गालों पर दाढ़ियां रख लो। बिजाई का मौका आ गया, बारिश हो रही, जमीन नरम हो रहा है। आप बताओ जब मसाइल सामने आते हैं तो क्या होता है, मुसीबत से दिल नरम हो जाता है या नहीं, बताओ भाई। अब इस मौके पर आजकल ही दिल नरम न हो तो क्या हो। लिहाजा अब जो बिजाई नहीं करेगा तो बहुत नुकसान उठाएगा। बेहतरीन मौका है कि भाई आजकल पता नहीं कि हम सुबह निकलते हैं शाम को घर आते हैं या नहीं, तो जल्दी से इसलिए हमने दाढ़ी रख ली कि अगर अल्लाह ताला के यहाँ हमारा डिपार्चर रवानगी विदाई हो तो मैंने इसलिए विदाई के खौफ से बिजाई कर ली। आप विदाई माने समझते हैं आप लोग, रुखसती। तो मैंने चूंकि विदाई का हर वक्त खतरा है, लिहाजा जल्दी से मैंने विदाई के वजन पर बिजाई है या नहीं, बताओ। वजन मिला दिया कि नहीं।
खौ की विदाई से बिजाई कर लो और दाढ़ी रख लो। और मैं कसम से कहता हूँ कि जिन लोगों से आप डर रहे हैं कि हमें हंसेंगे, मन्ना कहता हूँ वही लोग अगर आपसे दुआएं न कराएं, कुछ दिन के बाद हंसेंगे जरूर कुछ दिन, लेकिन एक जमाना इंशाअल्लाह ताला आएगा, इंशाअल्लाह ताला एक जमाना आएगा कि आपकी दाढ़ी की वजह से आपसे दुआएं लेंगे। आप कहेंगे उनसे कि तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। कहा मैंने मजाक उड़ाया था ये समझकर कि आप कुछ दिन के बाद हमारे मजाक से डर के मारे दाढ़ी मुड़ा देंगे, लेकिन जब देखा कि आप पक्के हैं तब दिल में यकीन आ गया कि आप अल्लाह वाले हैं। इसलिए आपसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं। दोस्तों, क्यों हम अपनी इज्जत को और अपनी नेकी को और अपनी अल्लाह ताला की निगाह पाक में हम क्यों जलील हो रहे हैं? मखलूक की नजर को खुश करने के लिए अल्लाह ताला की नजर को नाखुश करना, बताइए आप लोग फतवा खुद दो, जायज है? अल्लाह से ईमान दुआ करता हूँ और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसा ईमान, ऐसा यकीन अता फरमा दें कि हमारी हर सांस अल्लाह पर फिदा हो, तरफो पैर तक, और एक सांस भी हम अल्लाह ताला को नाराज न करें। माल भी रखे तो ये नहीं कि जरा सी रख ली, अभी डर है ज्यादा बड़ी रख लूंगा, एक मुट्ठी इसका हुक्म है, एक मुट्ठी इसका हुक्म है, एक मुट्ठी। इससे कतराना, इससे मुनाना तो दरकिनार, कतराना एक मुट्ठी से कम भी हराम है। जिल्द नंबर, आप हवाला कोई पूछे बता देना, बहसी ज़ेवर कहिए, जिल्द नंबर 11 सफा नंबर 115, फिर याद कर लो, बहसी ज़ेवर जिल्द नंबर सफा नंबर 115 पर देख लो कि कतराना भी हराम है। लिहाजा रखा, जब ओखली में डाला सर तो मुसलों से क्या डर, जब रखी लिया तो एक मुट्ठी रखो कि अल्लाह राजी हो जाए। आप बतलाओ, आप अपने अगर बादशाह हो तो अपने प्रेसिडेंट हाउस में आप झंडा पूरा सीधा रखना पसंद करेंगे या जरा सा झुका हुआ या कटा पिटा? बुलाओ, फर्ज कर लो आपको अल्लाह ताला ने सल्तनत दे दी, आप अब सुल्तान ज़मान वक्त हैं और आपका पे शाही सुल्तान का घर जो होता है क्या कहलाता है? प्रेसिडेंट हाउस या सुल्तान हाउस या बादशाह का घर या खाने सुल्तान या बैतुल मलिक, प्रेसिडेंट हाउस। अरे 4 जबानों में तो बता दिया, फारसी भी, अरबी भी, अंग्रेजी भी, उर्दू भी। और झंडा आपको दिया गया, क्या आप पसंद करेंगे आप झंडा कटा पिटा पुराना हो और कटा यहाँ से फटा हो वहां से कटा हो? आप फौरन उसको सजा देंगे क्यों? इसका जिसके सिपुर्द ये खिदमत होगी। लिहाजा मैं उन लोगों से कहता हूँ जिन्होंने झंडा अपना कटा रखा है या बिल्कुल ही उड़ा रखा है, अपने गालों को चपत लगाओ, 3 चपत लगाकर फिर चपाती खाओ। चपाती का नाम क्यों है चपाती जानते हैं आप? चपत की आवाज निकलती है पकाते वक्त, बीवी से सुन लेना कभी। जब चपाती पकाए तो देखो उसमें चपत की आवाज आती है या नहीं, उसी चपत से चपाती है, चपत वाली। उसके बाद अगर घर में आदत हो गाना सुनने की, अल्लाह से तौबा कर ली। गाना सुनना हराम है, बेईमानी पैदा करता है, जिना का दाइया पैदा करता है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े सहाबी हैं, फरमाते हैं कि अल गिना रुक़यतु ज़िना, गाना जो है इस ज़िना का मंत्र है, मंत्र। अखाज़े दिल में गंदे ख्यालात शुरू हो जाएंगे, गाना सुनने से ज़िना के ख्यालात शुरू हो जाएंगे। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि गाना से निफाक, बेईमानी पैदा होती। कानों से गीबत और गाना सुनना बंद, और आंखों से नामुनासिब जगह देखना बंद, जबान से झूठ बोलना बंद, और होठों पर मोछों को बारीक करना, ये अफजल दर्जा है। लेकिन थोड़ा थोड़ा बाल अगर हो, कनारा खुला हो, ये कनारा तो जायज हो। लेकिन आप ये बतलाइए कि आप मकान जब बनाते हैं तो फर्स्ट डिवीजन बनाना चाहते हैं या मामूली फिनिशिंग पर सब्र करते हैं? फिनिशिंग कैसी होनी चाहिए है? फर्स्ट डिवीजन ना। तो शेख औजजुल मसालिक शरह मुअत्ता इमाम मालिक जिल्द नंबर 14 शेखुल हदीस वहाँ ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अरबी ज़बान में मेरे पास मौजूद है, लिखा है कि बिल्कुल मोछों को बराबर करना जैसे कि आपको इस मुकर्रर की मोछ लग रही है। नमूना पेश कर रहा हूँ, सैंपल, और सैंपल दिखाकर आपको पुल कर रहा हूँ, यानी इस अमल की तरफ खींच रहा हूँ। ये आला दर्जा है, अफजल दर्जा है, आला दर्जा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर खलीफा के बेटे, कितनी उनको जाह चाहिए थी, मगर इतना बारीक करते थे
बुखारी शरीफ की हदीस है, दूर से उनके होठों की सफेदी नजर आती थी, बाल इस तरह से बारीक कर लेते थे। मगर अस्तुरा लगाने ने उलमा ने मना लिखा है कि बाज़ उलमा के नजदीक अस्तुरा बिदअत है, बाज़ों के नजदीक जायज है। लिहाजा जब जायज नाजायज में इख्तिलाफ हो तो बेहतर है कि अस्तुरा आप लोग ना इस्तेमाल करें, कैसी इस्तेमाल करें, वरना आजकल मशीन है। और पैजामा टखने से ऊपर कर लीजिए। बताइए इसमें आपको पैजामा टखने से ऊपर करने में क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? कोई कहेगा कि क्या होगा हो, लड़कियों ने मुल्ला शलवार की दरखास्त कर दी, लड़की औरत होकर कहती नहीं दर्जियों से कि ओ जनाब मेरा मुल्ला सलवार बना, यानी टखना खोल दो, ऊपर रहे। तो हमारा हुक्म मर्दों के लिए जूता है, ये मर्दों के लिए तमाचा है कि औरतों ने तो जिनके लिए हराम है टखना खोलना, उन्होंने टखना खोल दिया, और जिनके लिए टखना छुपाना हराम था उन्होंने ढक लिया। वो लोग सबक लेने की बात है, यानी वो न डरी कि न हराम काम खोल रहे हैं हम टखना, और हम लोग डर गए। टखना छुपाने से लोग मुल्ला समझेंगे, मुल्ला समझ लेंगे तो क्या हरज है। मेरे शेख साहब राव साहब ने एक उनके मुरीद ने कहा, हजरत तस्वीर लेकर जब चलता हूँ तो दिल डरता है कि लोग कहीं हमको नेक न समझने लगे। तो फरमाया क्या आप चाहते हैं तो लोग आपको बदमाश समझें? क्या चाहते हो? क्या ये चाहते हो कि लोग हमको बदमाश समझें? अगर नेक समझते हैं तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करो। कुरान शरीफ अल्लाह ने फरमाया जिसकी तारीफ हो रही हो ये अल्लाह ताला का इनाम है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना की तफसीर है, हसना की तफसीर कि अल्लाह हमको दुनिया में भी भलाई दे। आयत रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह हमको दुनिया में भी भलाई दे, इसकी तफसीर सुन लो। हसना क्या क्या चीज हो, नेक बीवी, रिज़्क़ हलाल, औलादुल अबरार, नेक बच्चे, नेक औलाद, इल्म दीन और सहबत सालिहीन, अल्लाह वालों की सोहबत। जिसको न मिली समझ लो हसना नहीं पाया। और क्या है? सनाउल खल्क, मखलूक में उसकी तारीफ हो, माशाअल्लाह मियां आदमी है, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, चलो भाई क्या तीन से दुआ लो, उसकी तारीफ हो रही हो। तो ये अगर हम तस्वीर लेकर चलो। मैंने कनाडा में वाटरलू एक पाकिस्तानी तालिब वहां पढ़ रहा है, लेकिन क्रिश्चियन लड़कियों से डरता था। मुझको लिखा मैं क्या करूं, हर वक्त यहाँ नंगी लड़कियां हैं और इन्हें हो रहा हूँ, मास्टर की डिग्री लेने आया हूँ। मैंने कहा तुम पगड़ी बांध लो और हाथ में तस्वीर ले लो। जब मैं अभी कनाडा गया तो उसके सर पर पगड़ी थी, उसने कहा जब से पगड़ी बांधी अरे हमको दे चटमाल करार दे दिया लड़कियों ने। कहा ये तो बिल्कुल पादरी हो गया है। अब ये ऐसा पादरी है कि मेरी बात को रिकंडीशन नहीं कर सकता। ये पादरी के माने समझ गए आप, तो उसमें री भी है। तो मैंने कहा मुबारक हो तुमको, इसलिए कहता हूँ कि तस्वीर हाथ में लो और मोटे दाने की लो, ताकि दूर से मालूम हो नाकाबिले वापसी माल है। ये इतना ज्यादा मुल्ला हो गया है कि अब ये वापस नाकाबिले वापसी माल है। और पगड़ी भी अगर हो सके तो बांधो, जिनको 2 नौजवान बच्चे हैं। तो ये चंद बातें बता दी। ये इस वक्त दोस्तों बिजाई का मौका है, दिल नरम है, हर शख्स डर रहा है कि सुबह जाएंगे तो शाम तक खैरियत से आएंगे या नहीं। बताओ भाई, हदीस शरीफ में एक जमाना ऐसा आएगा कि जो मारेगा उसका पता ही नहीं चले कौन मार गया, और जिसको मारा जाएगा उसकी वजह नहीं मालूम होगी क्यों मारा, मारने वाला कौन और क्यों मारा उसने, ये पता ही नहीं चलेगा। आज वो जमाना सदक अल्लाह और रसूल, अल्लाह का नबी कितना सच्चा है कि 1400 बरस पहले हमको खबर दी है। लिहाजा आज आप लोगों से ये वादा लेता हूँ कि आज से आप लोग बिजाई शुरू करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि बिदाई का खतरा है। शराफत का तकाजा तो यही था कि अगर बिदाई का खतरा न भी होता तो हम अपने अल्लाह को उनकी जमीन पर उनको राजी रखकर जीते। वो तो जीना कैसा प्यारा जीना है, जो अपने जिंदगी देने वाले को विष रख के जीता है, उसका जीना मुबारक है या नहीं। काश की ये दर्द आपके दिलों में अल्लाह ताला अपने रहमत से उतार दे कि जिंदगी उसकी मुबारक है जो जिंदगी देने वाले को हर वक्त खुश रखता है। उनको नाराज करके जीना अरे बहुत नामुबारक मनहूस जीना है। जो अपने जिंदगी देने वाले को नाराज करके जीता है, उसका नाश्ता करना, उसका चाय पीना, उसका अंडा खाना, उसका आमलेट खाना, सब कहते हैं सब क्या है, गैर शरीफाना है। बताओ, अब्बा को नाराज करके बेटा खाए तो आप कहते हैं नमक हराम है, और अल्लाह ताला का रिज़्क़ खाकर हम उनके सर से पैर तक सिर्फ अपने को उनकी मर्जी के मुताबिक न बनाएं तो हम कैसे है बताओ। बस आज इसी जुमले पर तकरीर को खत्म करता हूँ।